نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینشا اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ شائن ود اینشا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہمیشہ میری دعا ہے کہ اسی طرح خوشیاں آپ کے دروازے پہ دستک دیتی رہیں اور آپ اسی طرح ان کو ویلکم کہتے رہیں۔ اچھا جی، سب سے جو آج میرے شو پہ سب سے پہلے جو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے آج ایک بات کرنی ہے، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا میں نے اپنے اس پورے ایک سال میں دل دکھایا، اور میں نے کچھ لوگوں سے ہو سکتا ہے کہ بہت نہ جان کے اور ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، ہو سکتا ہے ان کا دل دکھایا، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ میں نے ایسی بات کر دی ہو جو ان کی دل آزاری ہوئی ہو، تو میں آج ان تمام لوگوں سے، وہ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے معذرت چاہتی ہوں، میں ان سے معافی مانگتی ہوں کہ وہ مجھے دل سے معاف کر دیں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں آئندہ یہ ساری چیزیں نہ کروں۔ ٹھیک ہے جی، یہ معافی میں نے کیوں مانگی ہے؟ معافی میں نے اس لیے مانگی کہ جو تمام مسلمان ہیں، خیر میں مسلمان کیا، مسلمان سے ہٹ کے جو کسی بھی مذہب سے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے شب برات آنے والی ہے، اور وہ بھی شب برات کی فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ تو ہم تو ہیں ہی مسلم اور مسلم کنٹری سے ہیں، تو جیسا کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ شب برات آنے والی ہے، اور وہ رات ہوتی ہے کہ جس میں زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ رات ہوتی ہے کہ آپ کو سب سے، آپ کے اپنے ہو، پرائے ہوں، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، رستے میں ملتے ہو، جو بھی ہو، آپ نے کسی سے بھی دل دکھایا ہو، آپ ان سے معذرت کر لیں، آپ ان سے معافی مانگ لیں، تاکہ آپ کے جو آگے کا سلسلہ اس رات بننا ہے اس میں آسانی ہو جائے آپ کو، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو رات ہوتی ہے، اس رات میں پوری رات اگر آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے رزق کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ سے جو آپ کے دل میں ہے آپ اس دن مانگتے ہیں، تو اس دن اللہ خود ساری رات اپنے ان بندوں کی دعائیں جو ہے وہ سنتا ہے اور ان کے معاملات کو آسان کرتا ہے۔ اس لیے سٹارٹ میں نے جو آپ سب لوگوں سے معافی مانگی، اس کا مقصد یہ تھا کہ معذرت کرنا، معافی مانگنا، کسی کو معاف کر دینا، وہ انسان کو چھوٹا نہیں کرتا۔ آپ کی معافی مانگنے سے اگر کسی کا دل صاف ہوتا ہے اور وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے اور آپ کے آگے کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو میں نے یہ چیز آج اسی لیے کی کہ دیکھنے والے اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے، تو یہ بہت بڑی رات ہے، اپنوں سے، پرائیوں سے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنوں کا دل دکھایا ہو، یہ رات ایسی ہے کہ سب سے معافی مانگ لیں، سب کو معاف کر دیں، اور اپنے رب سے گڑ گڑا کے گناہ کی، اپنے جو گناہ آپ لوگوں نے کیے ہیں اس کی معافی مانگ لیں۔ اچھا جی، کہتے ہیں استغفار استغفار، آپ کے گزرے ہوئے گناہ جو آپ نے کیے ہیں، توبہ جو آپ کر رہے ہو یا آپ کرنے والے ہو، تو آپ استغفار بھی کرو جو آپ نے گناہ کیے ہیں اس کے لیے، اور توبہ کرو کہ آئندہ آنے والا جو وقت ہے اس میں آپ کوئی گناہ نہ کرو۔ تو میں بھی استغفار کروں گی، شب رات کی پوری رات میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے رب کو راضی کر سکوں، میں اپنے گناہوں کی توبہ کر سکوں۔ میں سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتی ہوں اور جو میں نے سیکھا اور جو میں نے سمجھا کہ میرا رب جو اس کے حق ہیں، جو ہم نماز اگر ادا نہیں کرتے اور وقت پہ نہیں کرتے، تو میرا رب کہیں نہ کہیں شاید ہمیں اس کے لیے بھی معاف کر دے گا، پر جو ہم اپنے ساتھ رہنے والے لوگ، اگر ہم ان کے حق ان کو نہیں دیتے، اگر ہم ان کا دل دکھاتے ہیں اور وہ ہم سے راضی نہیں ہے، تو ہمارا رب بھی ہم سے راضی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے جو آس پاس لوگ ہیں ان کو راضی کریں، ان کو خوش رکھیں، تو یقین اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ تو میرے لیے، میں سب کے لیے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ جو ہے، جو ہمارے اس دنیا سے، ہمارے اپنے، میرے جو دیکھنے والے ہیں، اگر ان کی فیملی سے کوئی گئے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بزرگ، ان کے لیے بھی دعا کروں گی کہ یا اللہ انہیں لمبی زندگی، صحت، تندرستی کے ساتھ دے، اور یا اللہ ہم جو اپنی زندگی میں قدم قدم جو گناہ کرتے ہیں، قدم قدم جو ہم سیاست کرتے ہیں، قدم قدم ہم اگر ایک انسان کام کر رہا ہے اس کو تکلیف میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں بھی معاف کر اور ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا کر۔
اور ساتھ ساتھ اسی سلسلے کے حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے. ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے اس ٹاپک پہ. اور آپ بھی اگر کرنا چاہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. لائیو کال کرنے کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرینس پہ ہمارے فون نمبر ہیں. اور اب میں آپ کو اپنے گیسٹ سے ملواتی ہوں. جی سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں عبدالقدیر CEO زاہد ٹائل. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے بالکل آپ. بالکل. اچھا جی, دوسرے ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر طلحہ قادری, ہم ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں طلحہ؟ اچھا جی, سب سے پہلے شو کا جو ہم آغاز کریں گے وہ آپ کلام سنائیں گے, تاکہ جو ایک مبارک کلام ہم سنیں گے اس سے ہمارا جو شو ہے وہ بھی اچھا ہو جائے, ہمارا صبح کا آغاز بھی اچھا ہو جائے, اور جو ایک اتنی بڑی رات اس کی فضیلت بھی ہمیں آپ ضرور بیان کیجیے گا آگے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, ہو جو حاتم کو میسر وہ نظارہ تیرا, کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا, وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور جیسا کہ آج کی رات بہت بڑی رات ہے, تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے ایک شعر بہت ہی خوبصورت پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے اس کی تضمین بیان کی ہے. کہتے ہیں, مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی, تو نے ہر گام پہ کی ہے میری حمایت کتنی, کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی, ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا, تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع, کر نصیر آج مگر فکر رضا کی توسیع, پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وکیل, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا.
सुभान अल्लाह। अच्छा जी, शब बारात जितना मतलब मैं जब दुनिया में आई और मैंने सबसे पहले कहते हैं कि इंसान अपनी माँ से सीखता है कि माँ जिस तरह के अमल कर रही होती है, अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें कर रही होती है, बच्ची बेटियाँ ख़ास तौर पे वही चीज़ें करती हैं। तो मैंने हमेशा से अपनी माँ को देखा कि शब बारात की रात को मेरी माँ जो है वो अच्छा एक चीज़ मैं अपनी माँ की भी और साथ साथ ये भी आपको बताऊँ, शब बारात आप मगरिब से पहले गुस्ल लाजमी कीजिए, क्योंकि आपने शब बारात की रात जो है आपने अल्लाह के जो है हुजूर पेश होना होता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होती है, गिड़गिड़ाना होता है, और कहीं ना कहीं ऐसा उस रात हमें महसूस होता है। वैसे तो हम बहुत गुनहगार हैं, हमारी दुआएं वहाँ तक नहीं पहुँचती, रास्ते में ही यहाँ वहाँ हो जाती, क्योंकि हम बहुत गुनहगार हैं। दुआओं का वहाँ तक पहुँचने का भी एक अमल होता है, ठीक है। तो पर इस रात कहा जाता है कि अल्लाह सबको सुनता है, सबको सुनता है, अल्लाह देखता है कि उसका बंदा उससे किस तरह गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रहा है। तो सबसे पहले आपने मगरिब से पहले जो है गुस्ल लाजमी करना है, और उसके बाद आपने जो आमाल हैं आपके, तो वो शब रात के आपने पूरी रात तकरीबन करने हैं, पूरी रात आप कोशिश करें कि वो करें और अपने अल्लाह से माफ़ी मांगे। और सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ ख़ुद से कि आज फिर मुझे शब बारात की रात मिली है, और मैं अब फिर जो है एक बार अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकूँगी, और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने गुनाहों की माफ़ी अपने रब से भी मांगूँ, और उससे पहले जिन लोगों का मैंने दिल दुखाया उनसे भी माफ़ी मांगूँ। इस बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और आपके चैनल का K21 का, जिन्होंने बिज़नेस के हवाले से हमें बुलाया। और सबसे बड़ी बात है आज की रात और आज के आने वाले जो बाबरकत रात जो आ गई तकरीबन, तो इसके हवाले से बहुत समझ लें कि एक अच्छी जो है फ़िज़ा है, सारा कुछ है बनिस्बत जिसके कि जो आजकल लॉकडाउन चल रहे हैं और जो आने वाले लोग जो भी कब्रिस्तान जाएंगे उनके मामलात, ये सारा कुछ। लेकिन ये कि अच्छा है, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हमें हर चीज़ को जो है पॉजिटिव ही देखना है, और अब तो ये एक तरह से एक हिस्सा बन गया है हमारा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हमें जो है ना, ख़ास तौर पे हम अपनी बात करें तो हमें भी जो है शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ये रात फिर मिल गई। आने वाला जो है महीना रमज़ान का है, अल्लाह ताला वहाँ तक भी हमें पहुँचा दे, और हम जो है अल्लाह से मांग सकें, अपने लिए मग़फ़िरत मांग सकें, जो हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब में जो जा चुके उनके लिए बख्शिश मांग सकें, अपने लिए अल्लाह ताला से नेक तमन्नाएँ, दुआएं और ये सारी चीज़ें जो जो इंसान की एक तमन्ना रहती है कि खुदा से वो मांग लो, वो रात ये है और ये सारे मामलात हैं। अल्लाह ताला ने हमें भी खुश नसीबों में रखा है, और हम सबको रखा है। जो जो इस साल जो है हज नहीं कर सके, उम्रा नहीं कर सके, कम अज़ कम उनको एक ये रात मिल रही है कि अल्लाह से जो है ना अपने लिए बख्शिश मांग लें। अल्लाह ताला से जो मांगना है आज समझ लें, एक तरह से एक यूँ कह लें कि आप एक जो है एक आमाल और एक देने और लेने का सिलसिला जो है अच्छा ना ये आज लगा बताइएगा रहेगा। मुझे कि आपने क्योंकि कहते हैं ना इस रात एक अच्छा बहुत मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ मैं मोबाइल की स्मार्टफोन की बड़ी को बुरा कहती हूँ, मतलब पॉजिटिव वे में, तो जो काम आप ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर बहुत सारी बुराइयाँ भी हम लोग इसके साथ कर रहे होते हैं। पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे एक सबसे पहले जो शब बारात का मैसेज आया, जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, वो मेरे दिल के भी बहुत करीब हैं, मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं और मैं भी उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, और बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका सबसे पहले मुझे मैसेज आया शब बारात के हवाले से, और कि भाई कभी मैंने आपका दिल दुखाया हो, तो वो एक मैसेज बना हुआ। तो आप मतलब ये बड़ी आसानी है, कुछ लोग जाके माफ़ी नहीं मांग सकते, वैसे अगर आप ये अमल करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, पर अगर नहीं कर सकते तो ये भी बड़ी आसानी है कि आप, क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना है, आपने थोड़ा लोगों से नहीं मिलना जुलना, तो आप इस तरह से मैसेज बना के भी जिन जिन लोगों का अगर आपने दिल दुखाया तो, और अगर आपने दिल नहीं भी दुखाया तो भी हो सकता है किसी के दिल में कोई बिल्कुल बात बिल्कुल, हो। बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी नहीं चल रही होती कि हमारी कोई भी कॉल और फेल से किसी को तकलीफ हो सकती है, हमें इसका अंदाज़ा ना हो। लेकिन होता ये ना, जैसे कि किसी को आपने टाइम दिया और आप पहुंच रहे लेट, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि जो है सामने वाला किस कर्ब से गुजर रहा है, किस अज़ियत से गुजर रहा है। तो ये बिल्कुल ये पूरा जो है ना एक सिलसिला चलता ही रहता है कि कभी कुछ और ये सारे मामलात जो है ना। तो बिल्कुल आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि आज अगर इसका अगर सही इस्तेमाल देखा जाए तो इस रात के हवाले से
इससे अच्छा कोई जो है ना मैसेज हाँ, नहीं हो बिल्कुल। सकता कि आप बिल्कुल आगे करें, जिसका दुखाया है वो भी और जिसका नहीं दुखाया है वो भी बिल्कुल आप सबसे करें, क्योंकि आपको तो सही अंदाज़ा नहीं है ना। बिल्कुल। अब आप इसी चीज़ से देखें, हम एक चीज़, एक मैसेज जब हमें आता है या हमसे कोई माफ़ी मांगता है और हम आगे फिर 4 लोगों से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, आज तो जो है अल्लाह के हुजूर लोगों के आमाल नामा जो है वो खुलेंगे और वो सारी चीज़ें होंगी, पता नहीं ज़िंदगी अगले साल हमारा हम फिर ये रात नसीब हो ना हो, पता नहीं हमारा रब हमसे राज़ी हो ना हो, क्या पता हम अपने रब को आज राज़ी ना कर सकें। तो इतना खौफ होता है। और सबसे पहला खौफ जो मैंने आपको अपने इंट्रो में कहा, सबसे पहली बात कि अपने जो बंदे, जो लोग जो आपके साथ इस दुनिया में हैं, सबसे पहले आप उनसे माफ़ी मांगते हो। क्यों मांगते हो? इसलिए कि मेरा रब भी तब राज़ी होगा कि जब आप अपने आसपास रहने वाले लोगों को माफ़ करोगे, उनसे माफ़ी मांगोगे, उनका दिल आपसे नहीं दुखा हुआ होगा, तो मेरा रब अपने मामलात में फिर आसानी कर देगा। पर इन मामलात में रब आसानी नहीं करेगा अगर आपने मेरे अल्लाह के बंदों के साथ अगर नाजायज़ की, दुख दिया, तकलीफ़ दी, अजियत दी, तो अल्लाह ने आपको कभी माफ़ नहीं करना। तो इस चीज़ को अगर आज हम समझ जाएं और पूरा साल हम कोशिश करें कि हम अगले आने वाले साल तक हम किसी को जानबूझ के नहीं परेशान करेंगे, तो यकीन करें बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा मामलात हल हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसी ही बात है। इतनी बड़ी रात अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में एक बार से फिर से अता की है, तो हमें बेहतर ये है कि जितने लोग हमारे लिंक में हैं हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और माफ़ी मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बिल्कुल। बल्कि माफ़ी मांगने वाले को अल्लाह ताला भी पसंद फरमाता है। और क्या पता हमारा ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आ जाए, रब की बारगाह में मकबूल हो जाए कि इस अमल के सदक़े पे हमारी मग़फ़िरत हो जाए आज की रात के सदक़े में। अच्छा, ये बताएं, ये जो मैंने अभी कहा कि इस रात के हवाले से कि मगरिब से पहले गुस्ल आप ज़रूर लाजमी करें, क्योंकि फिर आपने पूरी रात जो है वो आपने अमाल करने होते, पूरी रात आपने जो है वो जानमाज के ऊपर जो है अल्लाह के हुजूर पेश होके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होती है, अपने आने वाले साल के लिए अपने रब से, अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए अपने रब से बहुत ज़्यादा आसानियाँ मांगनी होती है, क्योंकि देने वाला मेरा रब है, जो दे के आपसे कभी भी नहीं बोलता कि मैंने तुझे इतना दिया। ये सब सिर्फ करने वाला मेरे रब है, मेरा अल्लाह है, जो आपको देता है और इतना देता है कि आपकी सोच से ज़्यादा देता है। तो आप मुझे बताएं, ये गुस्ल के हवाले से बताएं कि इस रात को गुस्ल की क्या फजीलत है इबादत से पहले? देखें, आम रूटीन में हम देखें तो गुस्ल तो वैसे भी करना चाहिए, ठीक है ना, इबादत के लिए ज़रूरी भी है। और इंसान, अल्लाह करीम ने जो है हमारे लिए सफाई निस्फ ईमान रखा है, ठीक है। तो गुस्ल जब हम नॉर्मल रूटीन में भी करते हैं, और इस रात की तो वैसे ही इतनी फजीलत है, तो अगर हम गुस्ल करके अपने रब के हुजूर हाजिर होंगे और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगेंगे, सब के लिए खैर मांगेंगे जो इस वक्त हालात हैं हमारे पूरे मुल्क के, तो ये एक बेहतर अमल है। और आज की रात जो नवाफिल हैं, दुआएं हैं, ज़िक्र व अस्कार है, जितना करेंगे हुजूर का वसीला पेश करके रब की बारगाह में, अल्लाह करीम हमें आज की रात के सदक़े में इंशाअल्लाह, हमारा यकीन है कामिल है कि अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में हमें बख्श देगा। बहुत गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, लेकिन जब पाकी हासिल करके गुस्ल करके एक रब की बारगाह में हाजिर होंगे तो रब ताला तो वैसे ही बेनियाज़ है, पसंद फरमाता है अपने बंदों को। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, आप शब बरात की रात आपकी क्या रूटीन होती है? क्योंकि आप बिजनेसमैन भी है, आपका बिजनेस भी है, तो उसमें क्या आप लोग जल्दी आप ऑफ करके घर चले जाते हैं? क्या रूटीन ये मैंने तो अपने वालिदैन के हवाले से देखा, जब भी मकसद मैं बिज़नेस सीख रहा था, उनके साथ था, तो इस रात को बड़ी अहमियत देते थे कि भाई जो है थोड़ा सा जल्दी, या तो कोशिश ये होती थी कि डिपेंड होते हैं, बहुत सारी मार्केटें होती हैं, वो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इस दिन दुकानें बंद करते हैं, अपने कारोबार को वाइंड अप करते हैं, बिजनेस को वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट डे रोज़ा रख लेते हैं। तो ये पूरी रात जागते हैं, फिर अगले दिन भी छुट्टी करते हैं। ज़्यादातर तो जो है वो तो करते ही हैं, नहीं, शब रात की जो रात जो है वो जागने के बाद अगले दिन वो छुट्टी करते नहीं आते, लेकिन उससे एक दिन पहले भी मैंने देखा, जो पुराने जो चलते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो वो यही करते हैं इस रात को बड़ी, यानी कि उसका वो है कि हम भी यही देखते हुए आ रहे हैं अपने वालिदैन से कि वो कहते हैं भाई बस मगरिब से पहले पहले ना वाइंड अप करो और घर जाओ, कपड़े सब ये वो ज़रा एहतमाम करो। मकसद एक नज़र आना चाहिए कि आज की रात कुछ ख़ास है, कुछ ख़ास होने जा रहा है। और आपने देखा भी होगा, बिल्कुल अचानक से ट्रैफिक भी बढ़ जाता है, सारा कुछ हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि ये जो रात होती है, इस रात को देखिए, एक ये वाला तो हम अमल ज़रूर करते हैं कि अपने रब से माफ़ी मांगते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपने रब को राज़ी कर लें,
اور یہ عمل اگر ہم خیر روز کریں اور 5 وقت، کیونکہ 5 وقت صدا ہوتی ہے، ہمیں ہمارا رب ہمیں پکارتا ہے، اور اگر ہم اس پکار پہ اٹھ کے لبیک کریں اور نماز پڑھیں، سجدہ کریں، اپنے رب سے معافی مانگے اور اپنے رب سے سب کچھ مانگے، تو یقین کریں ہمیں کبھی کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر انسان اگر سمجھ جائے تو یقین کریں. اچھا ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں کہ جو شخص وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ اپنی نماز کوئی بھی ایک نماز نہیں چھوڑتا اور وہ پڑھتا ہے نماز، اور وہ اپنی لائف میں اس چیز کو، اس روٹین کو لے کے چلتا ہے جیسے ہم اور چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، یقین کریں زندگی میں، یہ میں لکھ کے آپ کو دیتی ہوں اور یہ میرا تجربہ ہے کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں. آپ کو آپ کی زندگی میں اتنی آسانیاں کیسے آ جاتی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کی لائف اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے. تو اگر جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کی لائف میں کوئی مشکلات ہیں تو خدا کے لیے آپ لوگوں کے آگے جھکنا چھوڑ دیں، آپ اپنے رب کے آگے جھکیں، نماز پڑھیں، سجدہ کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے رب سے گڑ گڑا کے مانگے. اگر رونا آ رہا ہے تو رو کے مانگے، اور رونا نہیں آ رہا تو چہرہ رونے والا بنا دے، کیونکہ میرا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور میرے رب کو آپ کی کیا پتہ یہی اداب پسند آ جائے. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس رات کو اپنے جو ہمارے پیارے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اب ہم میں موجود نہیں ہیں، ہم وہاں قبرستان بھی جاتے ہیں پھول لے کے، وہاں اگربتیاں جلانا، پھول لے کے جانا، وہاں سورت یاسین پڑھنا، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ بتائیں. دیکھیں اس کے بارے میں تو ایسا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے پاس جائیں گے تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہم عمل کریں گے وہ ہماری آنے والی نسل ہمیں دیکھ کے کرے گی. تو اگر ہم قبرستان جا کے اپنے مرحومین کی قبر پر حصول برکت کے لیے، قبر کے عذاب میں کمی کے لیے اگر ہم وہاں پر سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اس سے اللہ کریم قبر کے عذاب میں بھی کمی فرماتا ہے. اور اگر یہ عمل ہم اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر جائیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد پھر ہماری نسل بھی ہمیں دیکھ کر کرے گی. تو اس طریقے سے یہ ایک اچھا عمل ہے. اور ویسے بھی یہ رات تو ویسے ہی بہت بڑی رات ہے. اس رات میں تو یہ خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ قبرستان قبور پر جا کر اپنے عزیز و اقربا کی قبر پر ہم فاتحہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں. اور آپ نے جیسے ابھی نماز کا ذکر کیا تو میں یہ کہوں گا کہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. بالکل، بے شک، بالکل، کیونکہ یہ میری لائف میں نے تو ایک چیز کو نا لوگ کہتے ہیں اور میں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے اپنی لائف میں کہ جو چیزیں نہیں ہونی تھی، جو مجھے لگتا تھا ہونی نہیں تھی، اور وہ نماز میں پڑھتی گئی اور میں نے نماز کو نہیں چھوڑا. اور خیر یہ بات بتانی نہیں چاہیے پر میں نے اس لیے بول رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ دیکھ رہے اور وہ لوگوں کے پیر پکڑ رہے ہو، وہ لوگوں کے پیر نہ پکڑے، سجدے میں گر جائیں. آپ یقین کریں وہ جو چیز آپ نے کبھی خوابوں میں سوچی ہوگی وہ آپ کو ایسے مل جائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. اچھا جی، مجھے یہ بتائیں کہ ایک چیز جو میں نے اپنی لائف میں سنی ہے کہ اگر آپ کے کوئی عزیز اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو آپ قبرستان جاتے ہیں اور ان کی قبر پہ جا کے ان کو فاتحہ کرتے ہیں یا ان پہ پھول، کیونکہ ایک ہمارا ایک سسٹم ہے تو وہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. پر اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی خاندان سے نہیں ہے وہاں پہ پر آپ پھر بھی جا کے یہ عمل کرتے ہو تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا اگر آپ بتانا چاہتے ہیں. یہ تو بہت ہی ایک اچھا عمل ہے. اور بزرگوں سے اور اپنے اسلاف کو اگر ہم پڑھیں تو ہمارے اسلاف کا بھی یہی طریقہ کار تھا اور بزرگان دین کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ بھی اگر نہیں جا سکتے تھے تو بیٹھے بیٹھے دعا کرتے تھے اپنے مرحومین کے لیے. اور یہ ایسا عمل ہے کہ دیکھیں مرحومین کے لیے دعا کرنا، دعائے مغفرت کرنا، سرکار کی ساری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ کریم سے جب ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل کو دیکھ کر ہمیں پسند فرمائے گا. اور یہ عمل بھی ایسا ہے کہ ہم اگر کسی کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے نا تو جب ہی اللہ کریم کہتے ہیں نا کہ آپ کسی اور کے لیے کسی کے لیے اچھا مانگیں گے تو اچھا ملے گا. تو ہمیں اسی طرح سے اپنے مرحومین کے لیے اور دیگر جو ہمارے عزیز و اقربا ہیں سب کے لیے، پوری امت کے لیے ہم دعا کریں. جن کو نہیں بھی جانتے ہوں مغفرت کی دعا کریں تو اس کے مغفرت کی دعا کرنے کے صدقے میں کیا پتہ ہماری بھی اس کے صدقے میں مغفرت ہو جائے. بالکل. اچھا یہ بتائیں، اچھا آپ نے بتا دیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے، کچھ لوگ جلدی چلے جاتے ہیں اس دن، کچھ لوگ تو دوسرے دن بھی نہیں چھٹی کر لیتے، کچھ لوگ تو روزہ بھی رکھتے ہیں، اس طرح سے بھی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا بتائیں. میں نے اپنے جو ہے بڑوں کو یہی دیکھا کہ اس رات کے سمجھ لیں جو ہے نا تیاری بہت اچھے طریقے سے گھر میں اس کے حوالے سے کچھ کھانے وانے بھی بن رہے ہوتے ہیں،
कोई जो है न्याज वगैरह का मामलात भी चल रहे होते हैं, और बिल्कुल ये देखा कि सहरी करके रोज़ा रखते हुए देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रखूँगा, अल्लाह ने अगर मुझे ज़िंदगी अता करी बिल्कुल करूँगा। और इससे बड़ी बड़ी बरकतें हैं, बड़ी यानी कि अगर आप किसी कामयाब आदमी का जिक्र करें ना, तो उसने मेरे ख्याल से जो है बिल्कुल आपने सही कहा कि यानी कि जो है हमें किसी के दर पे नहीं जाना चाहिए, जो दर का मालिक है, आप उसके आगे जो है आप एक दफ़ा कह के तो देखें, आपके दिल से ऐसे ऐसे निकलनी चाहिए दुआओं के अंदर, यानी कि आप किससे बात कर रहे हो, यानी आप अपने खुदा से मांग रहे हो कि अल्लाह आज मैं जो है मेरे जो है फला बंदे से मेरा कोई कसूर नहीं था यार, लेकिन मुझे इसकी जो है ना सज़ा मिली है, अब ये तू बेहतर जानता है, मैं बस तेरी अदालत पे जो है ना ये अपना एक रख रहा हूँ। और तो अक्सर आप ये जो आप देख रहे हैं ना आजकल टेंशन लोग हो रही है, और लोगों ने बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन के अंदर शिकार हो गया है, दवाइयाँ आ रही हैं, आप ज़रा एक कभी प्रैक्टिकली करके तो देखें कि अपने साथ होने वाले जो भी मामलात है दिन भर में, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें ना गानी ये कह लें या ना करदा सजाओं की जो है ना कुछ एक मिल जाती हैं कि भाई ये हमने किया भी नहीं है और हमें सुननी भी पड़ गई है। जनरली बातों से दिल बड़ा एक अपसेट सा हो जाता है, टेंशन में बंदे आ जाते। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप एक दफ़ा बिल्कुल आप ज़रा आप नमाज़ पढ़ते होंगे बेशक, दुआएं भी अल्लाह से मांगते होंगे, कभी आप दुआओं में जो है ना अपने साथ होने वाले इस मामलात का जिक्र करके ना आपको इतना सुकून मिलेगा, मुझे यकीन करें कि आपको कभी किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो है आप ऐसा रिलैक्स हो जाओगे जैसे लगता है कि आपका केस जो है ना उठ के किसी और अदालत में हो जाएगा, अब वो जाने और उसका मामला जाने। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, जो मैंने अपनी लाइफ में चीज़ देखी भी, पढ़ी भी, रिसर्च भी की, और देखिए बाहर लोग साइंसदान जो है वो रिसर्च करते हैं, हमारे कुरान को वो पढ़ के वो देखते हैं कि आया ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, रोज़ा हमारा सबसे पहले, क्योंकि रमज़ान का महीना भी आने वाला है, उसमें भी थोड़ी सी बात करते हैं कि रमज़ान हमारे जब आते हैं 30 दिन हमारे रमज़ान में हम लोग रोज़ा रखते हैं, हम लोग सहरी करते हैं, फिर उसके बाद हम इतने घंटे भूखे रह के अल्लाह की इबादत करते हैं, फिर हम इफ्तार करते हैं। ठीक है जी, ये जो हमारा टाइम है ये हमारा इबादत का टाइम है, हम मुस्लिम हैं। पर उन लोगों ने, साइंसदानों ने जब इस पर रिसर्च की तो रिसर्च ये हुई कि अगर आप साल में 1 महीना ये वाली रूटीन अपनाते हो तो आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं, उसके जो जर्म्स आपके बॉडी में आ जाते हैं वो किल हो जाते हैं। मतलब आप ये सोचें कि इस्लाम, मुसलमान, उनको अगर ये नेमत और ये सारी चीज़ें मिली हैं तो उनके फ़ायदे कितने हैं। ये है रमज़ान का फ़ायदा, अगर साइंटिफिकली अगर हम वहाँ जाके देखें। दूसरी चीज़, नमाज हर मुसलमान रोज़ जो है 5 वक्त लाजमी, और इसके अलावा अगर वो अपने रब से और ज़्यादा करीब होना चाहता है, वो एक टाइम होता है तहज्जुद का, कि जब आप रब से नहीं मांगते, रब खुद बोलता है कि क्या चाहिए तुझे, मैं देता हूँ। ठीक है, वो टाइम होता है। तो ये हो गए टाइम। अच्छा, इसमें अभी एक रिसर्च हुई कि जो हम सजदा करते हैं, इससे भी हमारे ब्रेन जो है वो एक्टिव फिर से वो स्टार्ट होता है, और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। जो हम सजदा करते हैं, हम जो वज़ू करते हैं, वो बहुत सारी बीमारियों, क्योंकि जो हम वज़ू करते हैं हम पीछे यूँ हाथ लेके जाते हैं, पानी लगाते हैं, ये सारी चीज़ें कान में, तो इससे भी हम बहुत सारी चीज़ों से बचते हैं, नमाज से भी। तो देखें, इस्लाम में अगर जो चीज़ें हम पे फ़र्ज़ की गई हैं, जो चीज़ें हम पे फ़र्ज़ की गई हैं, उससे आप देखें कि हमारी ज़िंदगी भी आसान होती है, हम बहुत सारी मुश्किलात से भी बचते हैं, हम बीमारियों से भी बचते हैं, प्लस हम अपने रब के करीब भी होते हैं, और हमारी ज़िंदगी जो है वो और आसान होती जाती है। तो अपनी ज़िंदगी में सबसे अहम जो है वो नमाज को रखें, सबसे पहले नमाज, उसके बाद आपका कारोबार, सारी चीज़ें। तो यकीन करें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद हमारा रमज़ान का महीना भी इंशाअल्लाह आने वाला है। जिन लोगों को ये महीना और ये माह रमज़ान जो है वो अगर मेरे अल्लाह की तरफ से मिलता है तो ज़रूर रोज़ा रखें, खुल के इबादत करें अपने अल्लाह की। तो आप यकीन करें वो जो बीमारी जो साइंटिफिकली वहाँ रिसर्च हुई है, वो बीमारियों के जर्म्स भी किल होते हैं बॉडी से। तो अब इसी के साथ हमारा शो जो है वो जारी है, पर अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। तो कहीं ना जाएँ, देखते रहें वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक से पहले जो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद थे, अब वो राउंड, क्योंकि वो जो है वो सेगमेंट ख़त्म हो चुका है, राउंड मुझे याद आ गया। गेम शो देख देख के क्या करें, अब गेम ही हर जगह हमारे दिमाग में घूम रहे, पर अब गेम नहीं खेलना, गेम का टाइम जा चुका है। अब जो है हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी चाहिए, कराची में हर चीज़ हमें बहुत अच्छी चाहिए, अब गेम नहीं चलेगा। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट जो हैं मौजूद हैं, इनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर रिजवी, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको हम अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है मोहम्मद अली सुमरो, एडवोकेट हैं वो, उनको भी वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, हमारे जो तीसरे गेस्ट हैं वो हैं जी बिल्डर हैं और वाइस चेयरमैन है बहरिया बिल्डर एसोसिएशन के, और उनका नाम है बिलाल तालिब, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं सवाल करूंगी तो फिर आप लोगों ने जवाब बारी बारी दे देने, वरना मैं जवाब आप लोगों से ले लूँगी, क्योंकि कराची की बात है और फिर कराची के साथ साथ बहरिया की भी बात है, दोनों चीज़ें मेन है, तो मैंने दोनों पे आप लोगों से पूछना है। सबसे पहले तो कराची का बताएं कि कराची आगे क्या नज़र आ रहा है, कराची का फ्यूचर क्या है? अब ऐसे ही मतलब हम ऐसे ही रहेंगे? हाँ, ऐसे ही रहेंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। कोई देखें, फ्यूचर तो जब नज़र आता है जब आपकी पॉलिसीज़ नज़र आए, फ्यूचर जब नज़र आता है जब आपके काम नज़र आए, फ्यूचर जब नज़र आता है जब आपकी फ्यूचर प्लानिंग नज़र आए। तो ना फ्यूचर प्लानिंग नज़र आ रही है, ना कोई काम नज़र आ रहा है, ना पॉलिसी नज़र आ रही है, और एक डिस्ट्रैक्ट सी कराची के लिए पॉलिसी जो है कि एक आदमी एक सिमत भाग रहा है, दूसरा आदमी दूसरी सिमत भाग रहा है। 1100 अरब का ऐलान हुआ था, मेरा ख्याल है उसको 4 से 6 महीने हो गए। वो 1100 अरब मेरा ख्याल है कि वो शायद कहीं किसी अरब मुल्क में किसी रेगिस्तान में दबे में वहाँ से निकल के आएंगे तो वो शायद पाक कराची पे लगेंगे। सो उस 1100 अरब में भी मसला ये, वो कहते हैं मैं खर्च करूँगा, वो कहते हैं मैं खर्च करूँगा, वो कहते हैं नहीं मैं दे तो दूंगा, लेकिन खर्च जिनसे करा रहा हूँ वो बेईमान है, वो तो चोरी करते हैं। सो इसको ऐसे ही उलझा के कराची का टाइम पास होता रहेगा, जैसे पास होता चला आ रहा है ऐसे ही टाइम पास होगा, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना। आप क्या कहते हैं इस पे? मैं तो इनके व्यू से डिफर करूंगा। देखिए, अगर 90s के दौर में आप कराची को देखें तो कराची में बहुत दहशतगर्दी थी, कितने वहाँ पे मसाइल, बहुत मसाइल थे। इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटल रखा है, यानी कि यूँ समझ लो कि पूरी जितनी आपकी कंट्री की जितनी सुपर पावर्स हैं उनके सब की नज़रें कराची के ऊपर हैं। यहाँ पे काम भी हो रहा है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं सारे वो रन कर रहे हैं, लेकिन देखें उनमें टाइम लगता है ना, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। ठीक है, बहरिया वाले भी देखो कितना काम कर रहे हैं वहाँ पे, नए नए प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से कराची की जो फ्यूचर है ना इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगा। और देखें बहुत इम्प्रूव किया कराची ने, आप 90s के दौर में चले जाएं कराची में कुछ नहीं था, ठीक है, एक सड़क भी इतनी प्यारी नहीं थी जो, लेकिन जो मुशर्रफ का दौर आया, उसके बाद जरदारी का दौर आया, नवाज शरीफ का दौर आया, इन्होंने अपना काम किया अपने अपने हद तक। ठीक है, लेकिन क्या है, इतना बड़ा वसी इलाका है, दिन ब दिन ये इंक्रीज कर रहा है। देखें ना, कराची पर इतना था, अब देखें कराची कहाँ तक फैल गया है। कराची के बीच के एरिया के बाद देखेंगे आपको कराची आपको खूबसूरत लगेगा, लेकिन आप बाहर के एरिया में जाएंगे तो वहाँ सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं, क्योंकि ग्रोथ उनके इंक्रीज कर गया है ना, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत बड़ा टाइम चाहिए। इसलिए मेरे साथ नहीं, आपसे एक और सवाल करूंगी, पर पहले मैं बिलाल के पास जाऊंगी। आपने कहा कि कराची बन गया है और जो है नवाज शरीफ ने भी काम किया, जरदारी ने भी काम किया, मुशर्रफ ने भी काम किया अपने दौर में थोड़ा थोड़ा, पर इसी पे मैंने आपसे सवाल करना, पहले बिलाल की तरफ जाऊंगी। बिलाल, ये मुझे बताएं कि अब सिचुएशन फिर उसी तरफ जा रही है, रमज़ान में फिर कह रहे हैं लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें, तो आपकी बहरिया टाउन में ये लॉकडाउन के असरात किस तरह से आते हैं, ये थोड़ा सा बता दे। वो एक अलग दुनिया है ना, वो कहते हैं बहरिया टाउन वालों की एक अलग दुनिया उन लोगों ने बसा के रखी हुई, तो थोड़ा वहाँ का भी सुन लेते हैं हम। बिल्कुल, लॉकडाउन तो देखें जो सिंध गवर्नमेंट के अहकामात होंगे डेफिनेटली वहाँ पे भी वही इंप्लीमेंट होंगे बहरिया टाउन के अंदर भी। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पेस मौजूद होती है कि आप अपनी जो SOPs है उनको फॉलो करते हुए भी अपने बच्चों को इंटरटेन कर सकते हैं। आप अपना एक हेल्दी एक्टिविटी जो है आपकी रूटीन है, आप उनको कैरी ऑन रख सकते हैं। हमारे पास जो वहाँ के पार्क्स हैं और वो वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो वहाँ पे अभी जितनी आबादी आई है अल्हम्दुलिल्लाह उसके एतबार से उनके सारे SOPs भी पूरे करें तो भी उनके लिए वो फैसिलिटीज़ एनफ है। तो इसलिए एक बड़े सारे जो लोग हैं जिनके यहाँ कराची के अंदर भी घर हैं और वहाँ पे भी उन्होंने ले रखे थे, तो अभी वो भी जब लास्ट क्वारंटाइन वगैरह हुए लोग और ये सब, तो सब ने बहरिया टाउन का रुख कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे रहते हुए वो सारी अपने एक तन्हाई फील नहीं करते। तो इस वजह से अभी भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर ये बिल हुआ तो भी यहाँ वहाँ के मकामी जो उधर रह रहे हैं उनके लिए फिर भी कोई थोड़ा सा सिटी में रहने वालों की निस्बत थोड़ी सी आसानियाँ होंगी।
ठीक है जी। अच्छा, आपसे एक और मैं सवाल करूंगी और फिर इनसे भी जवाब लूंगी। हमारे जैसे कि अभी आपको पता है कि अब काफ़ी अरसा, हमें तो वो 2-3 साल भी ऐसे लगता है कि हमने सदियों बिता दिए, क्योंकि हमें तो एक मिनट 100 साल लग रहा है। तो ये मुझे बताएं, आप जो बिज़नेस करने वाले हैं, जो बिल्डर्स हैं और ये जो प्रोजेक्ट सारे बना रहे हैं, इनके लिए आसानियाँ कुछ की हैं या और इन्हें मज़ीद तंग किया जा रहा है, या इन्हें बिल्कुल एक जगह पे बंद कर रहे हैं जो कि वो फिर ना काम कर पाएंगे, और अगर नहीं करते तो फिर पाकिस्तान की तरक्की को हम खुद रोक रहे हैं? इस पे थोड़ी सी बात कीजिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसमें अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी यही बात कर रहे थे। उसमें एक तरफ तो खान साहब ने जो है ना वो एमनेस्टी स्कीम दी हुई है कि आप अपना जो डॉक्यूमेंटेड मनी जो है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है। और दूसरी तरफ जो है उन्होंने जो रियल एस्टेट वाला है उसके ऊपर ये FATF के तहत ये जो एक उन्होंने उसके ऊपर वो पाबंदियां लगाई हैं, एक कानून पास किया है। उसमें जो रियल एस्टेट वाला है उसको इस चीज़ का पाबंद किया गया है कि वो जो है उसके पास आने वाले बंदे के बारे का एक तो उसका डाटा उसके पास सेव रखेगा तकरीबन 5 साल तक, और दूसरा वो उसको खुद जज करेगा। उसको समझ लें वो बना दिया गया है, एक जज भी समझ लें, उसको एक अदारा बना दिया गया है जो इन्वेस्टिगेट भी करेगा कि ये जो पैसा लेके आ रहा है ये वाइट है, ब्लैक है, या ये इसका पैसा जो है इसका सोर्स क्या है, और यहाँ आने वाला जो है वो कैसा दिखता है। अब आप देखें मतलब कि रियल जो एस्टेट दूसरे इदारों का काम अदारों का काम था करना है। वो भी रियल एस्टेट वाले के ऊपर डाल के, तो उसके ऊपर जो फिर जो उसके लिए सजाएं वो की गई हैं मुख्तसर, वो बड़ी बड़ी मतलब अजीब सी हैं। मतलब 5 किस साल तरह की की सजाएं हैं? 5 साल की कैद, 10 साल की कैद, और फिर अच्छा। उसके ऊपर उसके ऊपर पेनल्टी 10 लाख 15 लाख भी हो। अब ये देखें कि रियल एस्टेट का काम करने वाला जो है, आप थोड़ा सा उस चीज़ के वो देखें कि वो कौन होता है। वो एक तो बेचारे का, चूंकि हमारे पास कोई इस तरह के अदारे नहीं है जिन्होंने उसको प्रॉपर एजुकेट किया हो, या ऐसा हो कि एजुकेटेड लोगों को उन्होंने उठा के तो इस फील्ड में भेजा हो, ऐसा भी नहीं है। और दूसरा जो बंदा वहां पे बैठा हुआ है वो जरूरी नहीं सारे ही वेल एस्टेब्लिश्ड हों, सबके कुछ जो न्यू कमर होते हैं जो अभी अपना बिजनेस का स्टार्ट ले रहे होते हैं, उनके लिए डेफिनेटली मसाइल डिफरेंट होते हैं। तो वो उसके ऊपर भी ये पाबंदी लगा दी है कि आपने आने वाले को जज करना है कि उस बंदे का जो उसका बैकग्राउंड क्या है। और होता क्या है कि जब भी कोई बंदा इन्वेस्ट करता है, अब आप हमारे कल्चर को समझते हैं, कराची को भी आप समझते हैं, हर बंदा अपनी जो प्राइवेसी है उसको रखना चाहता है। अब बाज दफा तो ऐसे होता है कि हस्बैंड जो है ना वो परचेज कर रहा होता है और वाइफ को भी नहीं पता होता, और बाज ऐसे क्लाइंट आते हैं कि वाइफ परचेज कर रही हो तो हस्बैंड को नहीं पता होता। और हमें यहाँ पे ये किया जा रहा है कि आप इन सबको एक्सपोज करो, आप ये डाटा सारा जो है ना वो अदारों को दो। तो उस हवाले से जो हमारा समझ लें बिजनेस के ऊपर जो है ना ये एक वो खुदकश हमला है। हम तो इसको यही समझते हैं, हमारी जितनी तंजीमें हैं जो रियल एस्टेट की वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, तो वो सारी इस चीज़ पे मुतफिक हैं कि हम इन चीज़ों को जो अभी हमारे ऊपर इम्पोज की गई हैं, हम इनको नहीं करेंगे, इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे, जो कानून नाफिज करने वाले और जो कानून बनाने वाले वो हमारे साथ बैठे हैं इसके ऊपर। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो है वो ग्रेड लिस्ट से बाहर निकले, उसमें हम अपना पूरा जो इनपुट देंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसको इस तरीके से बनाया जाए कि वो इम्प्लीमेंटेबल हो। वो हम लोगों का जो है ना वो ना जो एक पूरी जिसको आप इंडस्ट्री का दर्जा देने की तरफ जा रहे हैं, उसी के ऊपर आपने इतना बड़ा अटैक कर दिया। हमारे साथ हमारे गेस्ट एडुकेट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, दोनों से भी इस पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। आप दोनों अपना अपना भी बताएं कि ये तो एक बड़ा बम इन पे मारा जा रहा है जो कि काबिले बर्दाश्त नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? जो स्टेट एजेंसी होती है कि वो समझो कि आपके पिलर है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है ना। आप जितने उनको फैसिलिटीज़ देंगे वो उतना उसके लिए काम करेंगे। यूँ समझ ले कि अगर स्टेट एजेंसी है तो आपकी इनकम डे टू डे इंक्रीज होगी। अब जब आपने उनको एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, बोल रहे हैं भाई एक किस्म का ये भी इंडस्ट्री का दर्जा है, और उनको खुला उनका रास्ता दिया कि भाई इन्वेस्टर को यहाँ लाओ, उनको हमारी तरफ मुतवज्जा करो कि भाई इन्वेस्ट करो, यहाँ पे आपका जो पैसा सेफ भी रहेगा और आपको हम फुल प्रोटेक्शन देंगे। ये देने के बाद फिर पूरी जिम्मेदारी उठा के इनके ऊपर डाल देना, जो कि इनका वो काम ही नहीं है। इनका सिर्फ क्या काम है, इन्वेस्टर को एक प्रोजेक्ट के बारे में बता देना कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्टर इंशाल्लाह आपको इसमें इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो ये अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं। अब उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं, कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं, उससे क्या हो रहेगा, इन्वेस्टर भी यहाँ नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली वो कहेगा भाई देखें आप तो इतना डीपली आप हमें तंग कर रहे हैं, हम कैसे आएंगे, वो भी नहीं आएगा। जो स्टेट एजेंसी है उनका तो काम ही ठप हो जाएगा। जब इनको आपने पहले कहा था कि भाई आप यहाँ प्रोजेक्ट बनाएं, उनके कहने के ऊपर इन्होंने इन्वेस्ट शुरू कर दी, इन्होंने उनको मुतवज्जा किया, वो यहाँ पे आए। अब अगर ऐसे कानून बनाएंगे जैसे भाई बता रहे हैं FATF उसी तरह, ठीक है हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमें टेररिस्ट को रोकना है, जो वहाँ पे जो मनी ट्रेल है उसको एक जाहिर करना है। लेकिन जहाँ पे आपने इन्वेस्टर को ये कहा है कि नहीं भाई
आप जो जिनकी ब्लैक मनी है उनको भी यहाँ ले आए, वो भी उनको भी यही करेंगे, ठीक है ना। अब इनके लिए इतने सारी पाबंदियां करना, ये तो फिर यूं कोई काम ही नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे। अगर जब ये काम नहीं कर सकेंगे तो समझ लें कि तो आपकी कैसे होगी, इनकी बिल्कुल। होगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, ये जो आज एक नई बात हमने सुनी, इस पे आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उससे पहले मैं एक सुमर साहब की बात को काउंटर करूंगा। जी। मेरा ख्याल इस वक्त कराची रोशनियों का शहर है और कराची में इस वक्त कोई डकैती नहीं होती, कराची में कोई चोरी नहीं होती। कराची में पानी तो इतना है कि मेरे टैंक में जगह नहीं है पानी रखने की, गैस इतनी है कि मेरी बीवी कहती है मैं चाहती हूँ रोजाना आपके लिए अच्छा खाना पकाऊं। और जनाब हर फैसिलिटी कराची में, पार्क हैं, कराची में कोई कब्जा ग्रुप नहीं है। कराची इतना गुले गुलजार हो गया है कि लोग न्यूयॉर्क छोड़ के कई लोग अमेरिका से यहाँ आ रहे हैं कि जी मैं आना चाहता हूँ। रह गई दहशतगर्दी की बात कि कराची में ये हुआ कि जी दहशतगर्दी ख़त्म कर दी गई। दहशतगर्दी पूरे पाकिस्तान में थी, सवात में भी थी, पेशावर में भी थी, कोयटा में भी थी, हर जगह दहशतगर्दी थी। अगर दहशतगर्दी ख़त्म हुई है तो वो पूरे पाकिस्तान से ख़त्म हुई है। और रही बात कराची की, सुब्र साहब ने फरमाया कि जी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में काम हुआ, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में काम हुआ, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट, यस मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में थोड़ा सा काम हुआ, उसके बाद वो टोटली डिसकंटिन्यू हो गया। आज कराची में हज़ारों मोटरसाइकिलें रोज़ छिनती हैं, आज कराची में हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ छिनती हैं। आज कराची में कोई अच्छा मोबाइल रखने वाला अपना मोबाइल हाथ में नहीं ले सकता, वो 2 मोबाइल रखता है, एक गाड़ी के उसके मैट के नीचे रखता है, दूसरा मोबाइल हाथ में रखता है। तो ये कराची में गुले गुलजार बना है, ये कराची अच्छा हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये रोज़ाना वर्स्ट से वर्स्ट हो रहा है। बिल्डर माफिया गया लियाकताबाद में और नाजमाबाद में और बास जगह 80 गज के प्लॉट पर 4 मंजिला बिल्डिंगें बनी हैं, रोजाना गिरती हैं। क्या हुआ है कराची में, मुझे बताएं ना जरा, कौन सा 20 साल के अंदर कराची अपनी पोजीशन से खराब से खराब तर होता जा रहा है। आप देखिए पूरे पूरे नाले कच्ची आबादियों ने घेर लिए थे और पानी आया तो वो सारा नाला चूंकि बंद हो गया था तो वो पानी डिफेंस में जो है लोगों के कमर्शियल्स के अंदर आया और तकरीबन 10-10 फीट पानी आया। तो बेसिकली बात ये सच ये है कि इस तरह की हम कोई मखमल में लपेट के उसको शो नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा हो गया है। मेरी जान अगर बची है या अगर अमन व अमान हुआ है, अमन व अमान का काम पूरे पाकिस्तान में हुआ है, मगर डेवलपमेंट कराची में बिल्कुल नहीं हुई। आज भी कराची की रोडें टूटी हुई हैं। आप गाड़ी लेके निकले तो आप जाएं नाजमाबाद गुलशन इकबाल, छोड़ दें नाजमाबाद गुलशन इकबाल को, डिफेंस सोसाइटी चली जाए, PCHS चली जाए, जहां पर एक बंगला 25 करोड़ रुपए का है, वहां पर रोड जो है ना उसका हाल ये है कि उसमें पैचेस लगाए हुए। सो एक तो पहलू ये हो गया जो मुझे जवाब देना था। नेक्स्ट इनका बहरिया टाउन वाला, देखिए ये तो PTI की गवर्नमेंट का स्लोगन पता है क्या है, यू टर्न, यूं गए ऐसे करके वो किसी वक्त भी पलटा मार सकते हैं। ये तो इनको सोचना चाहिए था, जो लोग इस किस्म का ब्लैक मनी का पैसा या ला के बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनको सोचना चाहिए था हम इन्वेस्टमेंट किसके पीछे कर रहे हैं, जो अचानक यू टर्न मार देता है। मार दिया उन्होंने यू टर्न। पहली बात तो ये कि ये होने नहीं चाहिए था, कोई एनआरओ नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं ब्लैक मनी वाला लाके बिल्डर में उसमें कंस्ट्रक्शन में लगा दे, तो वो जनाब वो गंगा से धुलावा हो जाएगा। ये कौन सी बात हुई? ब्लैक का पैसा, अगर वो ब्लैक का पैसा है तो वो कंस्ट्रक्शन में भी ब्लैक का पैसा है, वो गोल्ड में भी ब्लैक का पैसा है, वो डॉलर में भी ब्लैक का पैसा है। ब्लैक का पैसा जब आपकी वंस पॉलिसी है कि आपको खत्म करना है तो आपको खत्म करना है। जब तक ये ब्लैक का पैसा खत्म नहीं होगा उस वक्त तक, देखिए मेरी बात सुने, मैंने एक ठेका लिया, मैंने जाके एक रिश्वत से पैसा कमा लिया। व्हाइट मनी तो है ही नहीं ना हमारे पास, व्हाइट मनी नहीं, ठीक है ना जी, ब्लैक मनी थी तो मेरे पास। अब मैं इंतजार करता हूँ, नहीं इंतजार करते हैं लोग कि जिस वक्त MST स्कीम आएगी गवर्नमेंट की उस वक्त वो उसको ठोक देते हैं, वहां पर ले जाके उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब तक आप उस ब्लैक मनी को डिस्पोज नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे कि जनाब आपने एक दफा बना ली ना, अब आपकी यूज की नहीं है। ब्लैक मनी दुनिया में रिकवर की जाती है, ब्लैक मनी के लिए दुनिया में पीछे गर्दन पर रख के गोली मारी जाती है। हमारे यहाँ ब्लैक मनी जो है ना वो कहते हैं नहीं, अच्छा ऐसा करो बैंक में तो नहीं रख सकते, बिल्डर जो है वो इस्तेमाल कर लो, जमीन में लगा दो, वहां पे लगा दो। ब्लैक मनी, आपकी बात सुन ली है, उन्हें भी पकड़ रहे हैं। ब्लैक मनी इज ब्लैक मनी, नॉट अलाउड एनीवेयर ऑफ द कंट्री। इवन if this is out of country, you recover this, collect this from out of the country. दुनिया के मुल्क ऐसे नहीं चल सकते, इस तरह के निजाम पे नहीं चल सकते कि यहाँ पर जो है ना वो सोना सोना है और यहाँ पर मिट्टी है। आपको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लानी पड़ेगी। जब आप ये चीज तय कर लेंगे, हाँ एक बात को मैं जरूर कहूंगा कि एक दफा MST आपने दी और आपने कहा कोई बात नहीं, आप ले आए कंस्ट्रक्शन में, आप यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए, आप मकान बनाए। उसके बाद यहाँ तक मैं इत्तेफाक करता हूँ बिलाल साहब की बात से कि भाई किसी डीलर या एजेंट कैसे वो कोई आदमी में, यानी ये तो वो बात हो गई कि मैं किसी स्टोर पे जाके ग्रोसरी खरीदने जाऊं
اور وہ مجھ سے اسٹور والا سب سے پہلے میری باسکٹ کو سائڈ میں رکھ کے پوچھے کہ جی اچھا آپ یہ بتائیں پیسے کہاں سے آئے. اس طرح یہ تو بالکل ماننے والی بات ہی نہیں ہے. لیکن اگر آج تک الاؤ کر دی گئی ایسی بلیک منی کر دی گئی, آج سے خاتمہ ہونا چاہیے, ورنہ یہ سسٹم یوں ہی چلتا رہے گا. یوں ہی لوگ بلیک منی اپنی بنائیں گے, بنانے کے بعد انتظار کرتے رہیں گے, ایک ایمنسٹی آئے گی سب گرین ہو جائے گی. اور اس طرح ملک جو ہے وہ ملک نہیں چلتے اس طرح. ملکوں میں کرپشن کے خلاف, اور اب تو بہت دنیا میں سختی ہو گئی ہے, پوری دنیا میں سختی ہو گئی ہے. ان کے بھی جذبات سن لیتی ہوں کیونکہ آپ نے بالکل پورا پانی ڈال دیا ہے اس جذبات پہ. میں تو بڑا جوش دلا رہی تھی, وہ جوش سارا ہو گیا ہے. مطلب اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں, یہ بلیک منی روکی جائے اور یہ ساری چیزیں. تو پھر مطلب آپ لوگوں کو تو مجھے لگتا ہے آپ نے واپس جانا ہے, فیصل آباد ہے نا, گجرانوالہ کے چڑے کھانے پڑیں گے پھر. کیا کہتے ہیں اس میں؟ اصل میں طاہر بھائی کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. ماشاءاللہ ایک محب وطن ہے, بالکل ان کی جو جذبات ہیں چونکہ پہلے بھی ہمیں بیٹھنے کا بالکل موقع ان ملا تو کی- میں ان ان چیز کی سمجھتا بات بھی صحیح ہے اصل کہ میں روکے پر نہیں, میں آپ طریقے کو سے ساری نہیں, چیزیں ہونی وہ چاہیے. میرا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے, میرے بھائی ہیں. ہاں بات یہ ہے کہ کوئی بھی اکانومی کسی بھی کو اٹھا کے دیکھے, یہ انڈاکومنٹڈ منی کو اتنی نفرت والے جس طرح سے انہوں نے سپیچ دی ہے, اتنی یہ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. انڈاکومنٹڈ منی ابھی ہو سکتا ہے طاہر صاحب کی اپنی بھی جتنی ان کے پاس ٹوٹل ورتھ ہے اس میں ٹوٹل وائٹ اتنی نہ ہو. میں ایک ویسے مثال دے رہا ہوں. اسی طرح میرے پاس بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم لوگ اس حوالے سے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اس حوالے سے, اس کو ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے اتنی زیادہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. اور یہ بات طاہر بھائی بھی میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جو میری اپنی جو ایک میں نے کالا دھن ہے اس کو وائٹ کر کے کرنے کے 700 طریقے ہیں ہمارے اسی سسٹم کے اندر موجود ہیں, اور وہ طریقے سے اس کو وائٹ کر کے اور اس کا جس طرح مرضی چاہے استعمال کر سکتا ہے. اور وہ اگر نہیں بھی کرے تو بھی اس کے پاس اس بلیک منی کو استعمال کرنے کے 700 طریقے ہیں, تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے, اور کسی ادارے کسی ڈاکومنٹیشن میں وہ آئے گی بھی نہیں. اب اصل میں جو بات ہم کر رہے تھے, جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ اس وقت جو پینڈیمک آیا کرونا والا, اس کی وجہ سے ہماری جو انڈسٹری تھی اس کا ریوائول بہت ضروری تھا. انڈسٹری کے ساتھ ہی ہماری جو اکانومی تھی ٹوٹل اس کے اوپر بیسڈ ہے. تو اس کے لیے جب انہوں نے ایک بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا, اوورآل انہوں نے ایون آئی ایم ایف اور سارے ان سے اپروول کے بعد پھر انہوں نے یہ منسٹری دی ہے, اور وہ سٹل ابھی بھی چل رہی ہے. لیکن اب اس منسٹری کو جو دیکھیں اس کے آنے سے کیا ہوا کہ جو بلڈر تھا, جو کنسٹرکشن تھی, اس میں لوگوں نے انویسٹ کیا. اس کے انویسٹ کے ساتھ پھر اس کے ساتھ الائیڈ 72 انڈسٹریز ہیں, وہ ساری چلنے شروع ہو گئی. جب وہ چلنے شروع ہو گئی تو لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا, جو پیسے کی ترسیل ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ غریب بندے تک جانی شروع ہو گئی. تو اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک جو آ رہی تھی, جو لوگوں کے اندر ایک سمجھ لیں ان کو ایک روزگار مل رہا تھا اور اکانومی جو تھا وہ بہتری کی طرف جا رہی تھی. اب ہمارا جو موقف یہ ہے, جو ہماری جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس پہ وہ جو ہماری جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کے اوپر ایک جو کیا جا رہا ہے, ایک سمجھ قدغن لگایا جا رہا ہے, اور ان کے اوپر ایک جو سختیاں لگائی جا رہی ہیں وہ کسی طور بھی وہ سمجھے ریشنل نہیں ہیں, وہ جسٹیفائیبل نہیں ہیں. کہ ان کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ نے نہ تو کوئی ایف آئی اے میں اپروچ دی ہوئی ہے کہ وہ ڈیٹا انٹر کر کے اس کا نام آئی ڈی انٹر کرے اور اس کو پتا چل جائے کہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے اس کے پاس جو ہے نا اس کے کیا سورسز ہیں اور اس نے کیسے پیسہ کمایا, یا اس کو آپ نے مختلف نادرہ میں یا کسی بھی دوسرے تیسرے میں آپ نے اس کو کوئی سورس دی تو نہیں, چھوڑ کے وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے, وہ ہمیں تو ایک انویسٹیگیشن ڈیٹا آفیسر کے طور پہ اس میں, اور ہمیں اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اداروں کے اندر اس طرح سے کر کے ایک پہچان ابھی تک نہیں دی گئی جو کہ ہمارا حق ہے. چونکہ دیکھیں ریئل اسٹیٹ والا جو جتنی باہر سے جو ریمیٹنس لے کے آتا ہے اس میں ہمارے پاکستان میں لانے والوں میں سب سے پہلے اگر ایک نمبر آتا ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ والوں کا ہے. تو وہ ان کے لیے جو ہے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور اب مختلف اپنے فورم پہ بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, ان کے لیے جو ہے وہ یہ جو ایک امپلیمنٹیبل نہیں ہے, اس کو بیٹھ کے جو ہمارے بڑے ہیں جو اس کے ریئل اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا فارمیٹ بنایا جائے اس کا جو امپلیمنٹیبل ہو. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے باہر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک چیز جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سوال کروں گی میں, آپ نے کہا کہ کراچی میں کام نہیں ہوا اور کراچی ڈوب رہا ہے, کراچی پانی میں گیس نہیں, اور یہ ساری چیزیں ہیں, مطلب مجھ پہ بھی گزرتی, بارش ہوئی گھر میں پانی آ گیا جو کہ پہلے کبھی آیا ہی نہیں, اب آ گیا تو سب کچھ ڈوب گیا. گیس سردیوں میں آتی نہیں ہے, گرمیوں میں لائٹ نہیں آتی, پانی کبھی کبھی آ جاتا ہے ورنہ تو پیسوں کا تو آ ہی جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کام ہوا ہے یہاں پہ نا, کام لاہور میں ہوا ہے, آپ لاہور گئے؟ جی جی
लाहौर आपने देखा है, जी, जी। उन्होंने लाहौर को बना जी, दिया, जी। कराची को क्यों नहीं बनाया? मतलब सिंध हुकूमत इतने अरसे से, मतलब ये जो पीपल्स पार्टी है, क्या कराची को क्या बनाया? हर रोड टूटा हुआ है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। कराची वाले क्यों मतलब पीछे? देखें, हालांकि बिजनेस सबसे ज़्यादा कराची, मेन हब कराची, और कराची को पूछा नहीं जाता। सर आप भी इस पर ज़रूर बात करेंगे और आप भी करेंगे। देखें, मैंने तो महोदय ने कहा था 90s टू इसका, अगर आप 90s का कराची देखें, आज का कराची देखें, तो आपको आईने की तरह बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। मतलब 19-20 बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। 19-20 अब देखिए, एक लाइन आपने ड्रॉ कर रखी है कि भाई यहाँ स्नेचिंग हो रही है, पानी आ गया, बारिश हो जाती है, इंक्रोचमेंट हो रही है। ये तो जब से कराची बना है इंक्रोचमेंट हो रही है, ठीक है ना। हैदराबाद हो गया, सक्कर हो गया। अब आप बात करें लाहौर की, अब जो बारिश हुई थी, बोजदार साहब की हुकूमत थी, कितना पानी खड़ा था मेन शहरों पे, टीवी ने दिखाया था कितने दिन तक पानी खड़ा रहा, ठीक है। फिर कचरा कितना वहाँ पड़ा रहा, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, पूरा कचरे से लाहौर पड़ा हुआ था, ठीक है ना। ये कहना कि लाहौर जबरदस्त कर दिया, कोई जबरदस्त नहीं किया। देखिए हमारे जो कंट्री, मैं तो गई थी और बारिश हुई थी, मैंने और मैंने सोचा था कि भाई जूते वूते नहीं पहनने, भाई कराची के आदी लोग हैं हम तो जूते नहीं पहन के निकलते बारिश में, गाड़ी हमारी वैसे ही बंद हो जाती, हमने फिर धक्के लगा लगा के लेके जाने, पूरी तैयारी करके जब मैं निकली बाहर पानी नहीं था। देखें हमारी जो कंट्री है ना, शुरू से देखें हमारी कंट्री अयूब के दौर में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ऐसी कंट्री थी जो शाइनिंग कंट्री थी। आपके पास पैसा भी था, आपके पास रोजगार भी था, फैक्ट्रियाँ लग रही थी, मिलें लग रही थी, डैम्स बन रहे थे, यानी कि आपकी कंट्री चल रही थी। ऐसे इदारे बना रहे थे जिससे लोगों को रोजगार मिले, इनकम आनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, आपकी कंट्री चली गई एड पे, इमदाद पे, ठीक है ना। अब जब कंट्री का ये हाल हो, एड और इमदाद पे चले, कर्जे पे चले, उस कंट्री पे आप कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो जिनका पैसा है वो इन्वेस्ट न करें? भाई ऐसी कंट्रियों में तो जब आपके पास जो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो अमाउंट इंक्रीज तो करे। इमदाद पे लाने वाला कौन है, इस पे बात करते हैं। जरा इधर भी जवाब ले लेते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, अभी मुबारक हो आपको, आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना, उसके गवर्नर को आज़ाद कर दिया गया है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से आज़ाद हो गया है। क्यों हुआ है? अब तो आपका स्टेट बैंक भी आपका स्टेट बैंक नहीं, दुनिया में स्टेट बैंक जो होता है वो स्टेट का बैंक होता है। यहाँ पर स्टेट के बैंक को क्यों आज़ाद कर दिया? इसलिए कि आपका एक एक बाल बाल कर्जा में, कर्जा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कर्जा कब हुआ है? कर्जा पिछले 20-25 साल पहले, 30 साल पहले इतना कर्जा नहीं था। हर हुकूमत ने आके कर्जा लिया, कर्जा दिया, कर्जा लिया, कर्जा दिया। उस दौरान आप मुझे बताएं कि कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई गई ना कि गवर्नमेंट ने ये सोचा हो, किसी भी गवर्नमेंट ने ये सोचा हो कि जी हमारे पर इतना कर्जा चढ़ रहा है, हमारा मुल्क डे बाई डे एक दलदल में घुसता चला जा रहा है, हम इसको निकालें। आप बताएं कि कर्जा उतारना आसान काम होता है? आपके ऊपर 5-10 लाख 20 लाख रुपए जब कर्जा चढ़ जाता है तो उसको उतारना कितना मुश्किल होता है। जिस वक्त वो बढ़ रहा हो उस वक्त सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सारी बातें छोड़कर आज एक नुक्ते पे पूरी कौम को इकट्ठे होना चाहिए। कौन सा नुक्ता? वो अपोजिशन भी इकट्ठा होना चाहिए, उसमें अवाम को भी होना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट को भी होना चाहिए, उसमें आर्मी को भी होना चाहिए, उसमें अदलिया को भी होना चाहिए। एक नुक्ता कौन सा कि अब कर्ज उतारो का टाइम आ गया है। वो जो नारा लगा था ना, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, उसने तो कर्ज उतारो और फिर चढ़ाओ और फिर चढ़ाओ, इतना चढ़ा दिया कि आज मुल्क की गिरवी हो गया है। अब वक्त आ गया कर्ज उतारो का, वरना आज हमारा स्टेट बैंक गया, कल को दूसरे इदारे जाएंगे, परसों। इस वक्त देखें अब जो जंग चल रही है ना, तोप और गोलों की जंग नहीं है। अब कोई बम नहीं मारता किसी के ऊपर, एटम बम। सबने एटम बम बना के अपने साइड में शोकेस में रख दिए हैं, एटम बम कोई यूज नहीं करेगा। अब इकोनॉमी की जंग है, आपके ऊपर इकोनॉमी का हमला हो रहा है, आपके ऊपर दहशतगर्दी के हमले अब जो है ना ये बंद हो जाएंगे सारे। अब वॉर होगी, मीडिया वॉर होगी आपके ऊपर, अब आपके ऊपर इंटेलिजेंस वॉर होगी, अब आपके ऊपर इकोनॉमी की वॉर होगी। इकोनॉमी की वॉर बहुत खतरनाक है। जब एक आदमी के पास पैसे ही नहीं होगा वो लड़ेगा कैसे? जिस मुल्क में खाने का पैसा नहीं होगा वो मुल्क बम कैसे खरीदेगा? वो मुल्क अपने एटम बम को आगे जाके डेवलप कैसे करेगा? उसकी हिफाजत, सारी बातें छोड़ दे, बना तो लिया, उसकी हिफाजत करना बहुत बड़ी बात है। हमारा कितना पैसा एटम बम की, पाकिस्तान के खिलाफ एक आलमी साजिश हो रही है, इसको घेरा जा रहा है, घेरा जा रहा है। पहले ये इतना था, अब इतना हुआ, अब इतना हुआ, ये गिरता चला जा रहा है। सिवाय एक दो इदारों के जो थोड़े बहुत सीरियस हुए हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में सोचा है, कोई नहीं सोच रहा। अब वक्त आ गया है कीमे वाले नान पर वोट देने से मेरी अपनी तबाही आएगी। अब वक्त आ गया है कि उस नारे पे कि वो फलाने का फलाना शहीद, फलाना शहीद। अब अवाम खुद शहीद हो चुकी है, अब कहना चाहिए अवाम शहीद। अब किसी शहादत की वोट पे किसी को नहीं देना चाहिए, वोट देना चाहिए परफॉर्मेंस पे, वोट देना चाहिए मुल्क की बका के लिए, वोट देना चाहिए आंखें खोल के कि जिससे ऐसी गवर्नमेंट आए। और मैं बता दूं, जिस पोजीशन पे अब गया है मुल्क, ना अकेली गवर्नमेंट कर सकती है, ना अकेली अपोजिशन कर सकती है, ना अकेली अवाम कर सकती है, ना फौज ना अदलिया। अब सबको बैठना पड़ेगा, क्योंकि इस जमीन को बचाने। मेरे घर पे हमला हो गया है, मेरे घर पे हमला हो गया है। कौन सा हमला हुआ है?
इकोनॉमी का, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कर्जा चढ़ गया है, मेरा बैंक इस वक्त यूं हो रहा है, मेरा स्टेट का बैंक जिसका नाम था स्टेट बैंक। बी सीरियस। ठीक है जी। अब हम हमारे शो में एक ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से वापस आएंगे। बिलाल है हमारे साथ, ताहिर रिजवी है हमारे साथ और मोहम्मद अली सुमरो साहब है, तो इनसे और भी हम बात करेंगे, पर क्या करें जी, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनीशा। और अच्छा जी बिलाल, एक चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि समझे ये वाला जो आप पे अभी बम फोड़ा, मैं से बम बार बार इसलिए कह रही हूँ कि सुन के भी मुझे बहुत हैरत हो रही है। अच्छा, इसके बाद तो मतलब एक जो गरीब मजदूर बंदा है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा ना? मतलब ये तो आप अपने मजदूर की भी पेट पे लात मार रहे हैं। अब मैंने जिस तरह अभी आपको बताया कि इसमें एक इस तरह का तबका जो रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ है, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था, जो अभी थोड़ा सा एजुकेटेड लोग इसमें आने शुरू हुए हैं। पहले हम वो ये समझ लो उनके सब्ज के हाथ से तो आपने रिज़्क ही छीन लिया ना, उनके हाथ से उनका जो हुनर था वही आपने छीन लिया, क्योंकि आपने उसके ऊपर एक ऐसी चीजें इंपोज कर दी जिसको समझ लिया आपने उसको एजुकेट ही नहीं किया हुआ था, जिसके लिए आपने उसको जो पहले वो कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे उसके लिए आप उसको वो इक्विपमेंट तो नहीं दे रहे, उसको वो अप्रोच तो नहीं दे रहे, लेकिन आप उसके ऊपर जो है ना जिम्मेदारियां वो वाली डाल रहे हैं जो कि आपके अदारों की हैं, जिसमें नैब की, एंटी करप्शन वाले की, एंटी अक्रोचमेंट वाले की, बाकी जितने FIA की, जो उनके अदारों के जो काम है वो आप डाल रहे हो एक बेचारे स्टेट एजेंट पे जो अपना एक वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा है, तो उसके ऊपर आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारियां डाल रहे हैं, तो उसके लिए ये खुद अदारों को भी सोचना चाहिए। वो इतनी जिम्मेदारियां पूरी करते करते वो थक जाएगा और वो जो इतने प्रोजेक्ट या इतनी चीजें बननी है, वो मैंने जो मजदूर की बात की वो आगे चल के मजदूर तक ही सारा जाता है, उसी पे आएगा। अब चक्कर क्या है कि वो होगा क्या, वो जब आपने उसको डिस्करेज किया तो उसने डेफिनेटली जो उसने वर्किंग करनी थी, जो उसने लोगों को इसमें लेके आना था कि आप जो है ना वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, या जिस तरह बाकी जो रेमिटेंस उसने बाकी बाहर वालों से ओवरसीज से उसने उसको करना था, डेफिनेटली वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको आपने इनसिक्योर कर दिया। सबसे पहले तो जो अपनी सिक्योरिटी हर बंदा चाहता है ना, जब आपने उसको इतना इनसिक्योर कर दिया, आपने उसके ऊपर इतनी ज्यादा जो है वो जिम्मेदारियां डाल दी जिसका वो अहल ही नहीं है, जिसके लिए उसको ट्रेंड ही नहीं किया गया, जिसके लिए उसके पास जो है ना वो जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वही नहीं उसके पास, तो आपने वो वाली जिम्मेदारियां उसके ऊपर डाल दी और वो तो डेफिनेटली वो इनसिक्योर हो गया। अब वो ना किसी को बोलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी को बोलेगा ना ही वो उस काम को आगे कैरी ऑन रख सकेगा। जब आपके 2 नोटिस जाएंगे तो तीसरे नोटिस से पहले वो दुकान बंद करेगा और बेचारा किसी और मजदूरी पे चला जाएगा। तो ये चीज जो है ना, इसके ऊपर अदारों को सोचना चाहिए कि हम बिल्कुल वो वाला लाभ बनाएं, वो वाली चीजें हम मतलब मान लिया कि ये चलो FATF की तरफ से आपके ऊपर इंपोज है, लेकिन उसके ऊपर बैठे तो सही। हम जब मीटिंग में बैठे हैं जब इनके साथ, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे उनके कान तो है ही नहीं, सुनने की तो अल्लाह ने उनको वो हिस्से नहीं दी हुई, वो सिर्फ अपनी बातें सुनाते हैं, हम मतलब अपना चीखो पकार करते रह जाते हैं कि ये चीजें इस तरह इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। तो वो जैसे उनके पास साथ तो कान लगे नहीं हुए, बस वो अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, जिनके ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी लगाई हुई है, बस वो प्रेजेंटेशन देते हैं और उठ के चले जाते हैं। तो चीजें जो है जब तक आप हमारे लोगों को सुनेंगे नहीं, जो रियल एस्टेट के लिए काम कर रहे हैं, जो इसके जो अगराज़ो मकासद हैं जिनको जो समझते हैं और जो उसकी जो मैकेनिज्म है उसको समझते हैं, जब आप उन लोगों को अपने साथ बैठा के कोई कानून साजी करेंगे तो वो आपको वो रास्ते देंगे कि जिसके ऊपर आप FATF को भी मुतमिन करेंगे और हमारा रोजगार भी मुतासर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, अगर इस तरह के कानून बनते रहे और इसी तरह होता रहा तो मतलब फिर हमारा मुल्क किस तरफ जाएगा, क्योंकि लोग इतनी मुश्किलात में किस तरह से काम करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगेन बिलाल साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन कोई रियल एस्टेट वाला नहीं कर सकता, बट मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ ना कि इस मुल्क में पिछले जो 10, 20, 30 साल 35 साल जो भी हैं, उनमें जिस तरह के काम हुए ना, उससे ये हम आज बैठे हुए, और अगर इस पर नहीं रोका गया तो मेरी आने वाली नस्ल, मैंने अपना टाइम पूरा कर लिया है, मेरी आने वाली नस्ल इससे ज्यादा सिचुएशन खराब फेस कर रही होगी। आपको एक बात बता दूं रियल एस्टेट की, पाकिस्तान शायद एक आधी या एक आध मुल्क होंगे, कोई दूसरे मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन दुनिया में हर जगह रियल एस्टेट का जो काम करते हैं उनका लाइसेंस होता है। यहाँ पर क्या है
यहाँ पर एक आदमी है, उसने एक मकान किराए पे उठा दिया, फिर उसने दूसरा मकान किसी तरह घुमा फिरा के किराए पे उठा दिया, फिर एक छोटा सा कहीं प्लाट बेच दिया, वो रियल एस्टेट का पूरा बाकायदा डीलर बन जाता है, दुकान लेके बैठ जाता है। ये कहीं नहीं होता दुनिया में। रियल एस्टेट का लाइसेंस होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है कि आपको कैसे परचेज कराना है, कैसे सेल कराना है, ये रूल्स है, ये रेगुलेशन है, ये आपकी लिमिट्स ऑफ द वर्किंग है कि आपने इस लिमिट के अंदर काम करना है। दुनिया में रियल एस्टेट के लिए बाकायदा जिस तरह यूनिफॉर्म होता है, मैंने देखा है चाइना में, ताइवान में, वहां पर जो है रियल एस्टेट के जितने भी ये 12 बैठे हुए लाइन से, तो वो बाकायदा आते हैं और ड्रेस चेंज करते हैं। हर रियल एस्टेट ने अपना एक ड्रेस बनाया हुआ है और वो पैंट शर्ट पहन के और वो यहाँ अपना टैग लगाता है अपने नाम का और बैठता है, और बगैर ट्रेनिंग के, बगैर लाइसेंस के कोई रियल एस्टेट नहीं खुल सकती, बगैर ट्रेनिंग के वहां पे बंदा नहीं बैठ सकता। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर किसी को लिखना भी नहीं आता ना। सर यहाँ तो बगैर डिग्री के हम कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, सीटों पे। आप लफ्ज़ ब्रोकर पे ना करोड़ों रुपए की परचेज, जब तक देखें ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। दुनिया में नहीं मुल्क चल रहे क्या, हमसे छोटे छोटे मुल्क नहीं चल रहे। दुबई की कितनी आबादी है, दुबई हमारे कितने बाद बना है, कहाँ पहुंचा हुआ है। चाइना हमारे बाद आगे आया है, हमारे बाद उसकी डेवलपमेंट शुरू हुई है, कहाँ पहुंचा है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में बाकी सारे मुल्क तरक्की कर गए और मेरा मुल्क, सुन लीजिएगा, एक एक आदमी टैलेंटेड है, एक एक बच्चा टैलेंटेड है। आने वाले बच्चे तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन क्या हुआ, उनके मेहमान नहीं मिले, उनको लीड करने वाले नहीं मिले। लीड करना, लीडर नहीं होता। लीडर देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर होता है। लीडर कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो लीडर है। प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है। ब्यूरोक्रेसी का जो हेड होता है वो, इवन आपके प्रोग्राम कर रही है ना, आपके प्रोग्राम का भी एक लीडर है जो लीड कर रहा है, जो आपको बताता है कि जी अब ये कहना है, ये कहना है, ये मेहमान बैठा है, ये लीड करना। लीड यहाँ पर खत्म हो गई है। यहाँ पर एक ऐसा निजाम चल रहा है कि बस जिसके हाथ में डंडा है, जिसके हाथ में ताकत है, वो उसको सारे रूल और सारे कॉन्स्टिट्यूशन को रूल बैक कर देता है। उसके लिए सारे उसूल कानून खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर एक सजा याफ्ता मुजरिम आराम से बाहर जाके इलाज करा रहा होता है। यहाँ पर किसी के लिए कानून कुछ है, किसी के लिए कानून कुछ है। जब तक एक निजाम नहीं आएगा, मेरे लिए, सुमरा साहब के लिए और बिलाल के लिए एक कानून नहीं होगा, कुछ नहीं होना। आगे 25 साल, 30 साल, 35 साल यूं ही सिस्टम चलता रहेगा। सिस्टम बनाए जाते हैं। कानून की हुक्मरानी जिस दिन शुरू हो गई, जिस दिन कानून की हुक्मरानी शुरू हो गई, उस दिन आपके मसाइल, मैं नहीं कहता कि एकदम एक दिन में दुरुस्त हो जाएंगे, बट ग्रेजुअली आपको नजर आएगा कि कोई चेंज हुई है, कोई बेहतरी आ रही है। अदरवाइज आप रूल बना दो, आपके ऊपर FATF आ जाए, आपके ऊपर आप एंटी करप्शन के इदारों में बंदे बिठा दो, वो जाके पकड़ लें, जेल में डाल दें, पैसा तो फिर भी नहीं निकलता। निकला नहीं निकला, बंदा निकल गया। अच्छा जी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इस पे तो मैं सर शॉर्टकट में ये बोलूंगा। देखिए, एक मशहूर डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बिल्कुल। अब एक डायलॉग मैंने नया सुना, प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, नट उसका निकलता कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं तो भाई को मशवरा ये दूंगा, जो शिकें हैं जो कानून की, जो इनके ऊपर लगाई गई हैं, पोस्ट की गई हैं, आप तो एडवोकेट भी है ना, थोड़ा मशवरा भी तो दें। जो इनकी जिम्मेदारी नहीं उन शिकों के ऊपर, ठीक है, जो दूसरे इदारों की जिम्मेदारी है, ये एक पिटीशन मूव करें। अच्छा, ठीक है, उसमें ये बात करेंगे ये शिकें हम पे इम्पोज की गई हैं, ये तो हमारा काम ही नहीं है। सही है, ठीक है ना, ये अगेंस्ट द लॉ है, ये वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको नल एंड वाइड करार दे दिया जाए। ठीक है ना, तो वो कर सकते हैं। तो इनका हल है, लेकिन इनको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। नहीं, ये तो जाग गए, अब सामने वाले जागने चाहिए। ये अपना एक देखें, अमल करें ना, कोर्ट में जाएं, देखें ना, जब तक ये अपनी चीज को आवाम के सामने या इदारों लॉ के सामने नहीं लाएंगे, तब तक नहीं होगा ना। बाकी रहा हमारा मुल्क क्यों नहीं बन रहा, सऊदी अरब क्यों बन गया, चीन क्यों बन गया। देखिए, सऊदी अरब जो बना है ना, उनकी इकोनॉमी देखिए, अब वो एक नया शहर, दो नए शहर बिल्ड कर रहे हैं। देखिए, अब दो नए शहर बिल्ड कर, नहीं, अच्छा एक बात, एक चीज ना, बहरिया टाउन भी तो है ना, वो भी तो हमारे ही मुल्क में है ना। सऊदी अरब इस वक्त 2 नए शहर बिल्ड कर रहा है। क्यों? कि इकोनॉमी आनी चाहिए। जब तक कि आपके जो भी मुल्क ग्रोथ तब करते हैं कि ऐसे वो, जिसे इनको स्ट्रेटेजी कहा गया कि अवाम को पैसा लेकर के आओ, वो ऐसे इदारे बनाते हैं जहां से रोजगार भी मिलता है, बाहर से पैसा भी आता है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे इदारे मैंने बताया आपका, यूब के दौरे में बने, जुल्फिकार अली भुट्टो के दौरे में बने, उसके बाद पैसा लो, जेब में डालो, अवाम पे जमा डाल दो। जब तक ये 2 काम नहीं होंगे, सऊदी अरब का नाम लेना आसान है, चीन का नाम लेना आसान है, मिसाल देना आसान है, लेकिन जो वो काम करते हैं वो ये काम करते हैं कि इकोनॉमी लाते हैं, इदारे बनाते हैं। ये नहीं होता है कि अवाम पे टैक्स डाल दिया,
फैसिलिटीज कुछ नहीं, कितने टैक्स डालते हैं आवाम के ऊपर, फैसिलिटीज क्या है, कुछ कोई फैसिलिटीज नहीं है। यानी कि यहाँ ये कॉपी तो करते हैं बड़ी बड़ी कंट्रियों की, वहाँ जो चीज लेते भी हैं वो वहाँ पे देते भी हैं आवाम के लिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। पानी जो आ रहा है ये 110 रुपये कैन दे रहे हैं, गंदा पानी दे रहे हैं, लोगों की हड्डियां खत्म हो गई, हड्डियों की बीमारी पैदा हो गई है, कैंसर हो गया उनको। ये इस पानी की पता है आपको, ब्लड आपका खराब हो गया, आपके बून खराब हो गए, आपके कोई पूछने वाला नहीं है। किस चीज मिलावट नहीं है आपके मुल्क के अंदर, किस चीज में अंडे नकली आ रहे हैं, चावल नकली आ रहे हैं, क्या क्या नहीं आ रहा, आप पता नहीं है। जब इदारे कुछ नहीं करेंगे कर्ज उतारो, मुहम सवार हो भाई। आवाम क्या, आवाम पागल है जो आवाम पे बेचारा आप लोग डाले जा रहे होगे। जितने आवाम कमा रहे हैं, कोई अपना लंदन में इलाज करा रहेगा, किसी के वहाँ पे सऊदी। एक बात मैंने ये भी पूछनी थी कि पाकिस्तान के तो चले कहते हैं हम तो खैर पाकिस्तान से इलाज करवाते हैं, मैं तो दूसरे दिन ठीक हो जाती हूँ अगर बीमार हूँ, तो लंदन में भी इलाज मुझे लगता सही नहीं हो रहा है। इस पे आपको देखे ना, मैं बता रहा हूँ लंदन में कितने लोग मरते हैं इलाज के दौरान, कितने उनको छोटी बीमारी में बेचारे मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखें यूएसए में इलेक्शन के दौरान में कितना हमला हुआ, उनके मेन एरिया पे हमला हो गया ना। देखिए यह सब कुछ जहाँ होता है, जब आप उनको किसी चीज को प्रॉपर हैंडल नहीं करेंगे ना, यूएसए की मिसाल आपके सामने, उन्होंने प्रॉपर हैंडल नहीं किया उस चीज को। हमारा ये लोग बड़ा मतलब हम लोग खुद ही बड़ा वो बोल जाते हैं कि बड़ा क्राइम है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा क्राइम है, बहुत ज्यादा होता है, दुनिया भर में होता है, दिखाते नहीं है। दिखाते, अगर आप देखें तो भाई इतने क्राइम हो रहे हैं। देखें अमेरिका में, यूके में, यूएई में कितनी वहां पे स्नैचिंग होती है, कितने कत्ल होते हैं, कितनी फायरिंग होती है, कितना होता है, लेकिन नहीं होता। यहाँ पे क्या हमारी आवाम जो है ना, वो हमें अपने मुल्क को खुद गंदा करने के लिए तैयार बैठी हुई है। अच्छी बातें नहीं बताते, गंद के बताते हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब अच्छी बातें बताओ ना, ताकि लोगों को पता चले, ताकि लोग हमारे पास आए, हमारे इन्वेस्ट करें। अगर आप एक मुल्क का एक गंदा वो पेश करोगे तो लोग कैसे आएंगे, लोग डर जाएंगे लोग। हाँ, बिल्कुल। आप 90% बताओ अच्छी बातें, 10% को वो चीजें बताओ जो हमारे अगेंस्ट जाती हैं। यहाँ क्या करते हैं, 10% अच्छी बातें, 90% अगेंस्ट बताते हैं। अपने मुल्क के साथ गद्दारी देखो तो, मुल्क की तारीफ करो भाई, मुल्क के अंदर सब कुछ है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे बोले, हाँ भाई कुछ हो यहाँ पे गंद है, कुछ यहाँ बोलते नहीं कुछ अच्छा है, मुल्क की तो तारीफ करते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा है बाकी गंदा है। ऐसे नहीं करना चाहिए, यहाँ कहना चाहिए कुछ गंदा है बाकी अच्छा है। जब तक इस लाइन को आप अडॉप्ट नहीं करोगे, आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब शो का टाइम पता ही नहीं चलता कि कैसे 1 घंटा चला जाता है। आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या बात करना चाहेंगे? अभी आपको टीवी स्क्रीन पे सब देख रहे हैं, हो सकता है कोई इदारा आपको देख रहा हो, क्या पता वहाँ तक आपकी आवाज़ चली जाए जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं। मैं पहले तो अपने दोनों तार भाई और भाई साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने जो मेरी एक फैमिली है, रियल एस्टेट फैमिली है, उसके लिए इन्होंने जो है वो आवाज़ उठाई है, उसके लिए इन्होंने बात की है, तो मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी देखिए जी, हमारा काम है, जो एक रियल एस्टेट वाला है उसका काम है वो इन्वेस्टमेंट लेके आए, वो लोगों के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको वो करे, उसको वो बेहतर तरीके से वो एग्जीक्यूट करे, उसमें वो किसी किस्म का जो परचेजर और सेलर के दरमियान जो मामले जितने भी आए वो उनको वो तरीके से तय करे, उनके दरमियान कोई वो जो कोई गलत चीज़ ना, कोई किसी के साथ डील ना हो। उसकी जो जिम्मेदारियां बिल्कुल रियल्टर जो है उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो चाहता है वो अपनी ही जॉब को ज़बरदस्त तरीके से जो है ना परफॉर्म करे। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें उसके ऊपर इम्पोज ना की जाएँ जिसका वो अहल नहीं है, जिसके लिए उसके पास इक्विपमेंट नहीं है, जिसके लिए उसकी अप्रोच नहीं है, जिसके लिए वो उसको ट्रेंड नहीं किया गया, तो इस तरह की जिम्मेदारी डाल के तो हमारे जो रोजगार है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। जो लोग इतने सारे जो ट्रेंड हुए में अभी कितने सारी, जिस तरह अभी जो लास्ट इन्होंने किया था जो कंप्यूटराइज करें, जो हमारा पटवारी सिस्टम है हमारा पंजाब का, उसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, तो उसमें सबसे पहले जो उनके अंदर बैठे हुए लोग थे जो कॉपी पेंसिल पे काम करने वाले थे, उन लोगों ने आके बोला था कि हम लोग कहाँ पे जाएंगे, तो उनके लिए पहले बकायदा एक सिस्टम बनाया गया, तो फिर आगे सिस्टम को लेके चला गया। तो इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि हमारे चलो जो न्यू जो एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, डेफिनेटली वो हो सकता है कि वो इसके लिए कोई अपना कोई जुगाड़ करें, कोई हल निकालें, कोई किसी तरह से, लेकिन बड़ा सा एक बहुत बड़ा तबका, चूंकि इसमें हमारे जो ट्रस्ट फैक्टर जो है ना वो इन्वॉल्व होता है, और ट्रस्ट फैक्टर में एज फैक्टर जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, और क्योंकि वो एक एज के साथ एक करेक्टर बोल रहा होता है, तो इस वजह से जो उसमें उन लोगों के ऊपर ज्यादा, तो हम लोग जो ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो है ना आसानियां पैदा की जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जाते जाते क्या कहेंगे? शो का टाइम बिल्कुल चंद मिनट है। भाई को बता दिया है, ये कोर्ट में जाए अपने शकों को, जो शिकें इनको डिस्टर्ब कर रही हैं उनको चैलेंज करें। ठीक है जी, आप जाते जाते क्या कहेंगे कराची के मसाइल पे, क्योंकि हमारी आपसे हमेशा बात होती है? सबसे पहले तो ये कहूंगा
کہ शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर देने से तूफान नहीं रुकता। अगर मैं दुनिया को ये कहूँ पाकिस्तान में तो कुछ नहीं हो रहा, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, तो जो इन्वेस्टर होता है ना बहुत चालाक होता है, मेरे कहने से नहीं आएगा, वो आके पूरी इकोनॉमी देख रहा होता है, उसकी ग्रोथ देख रहा होता है, वो वर्ल्ड लेवल पे देख रहा होता है कि पाकिस्तान का इकोनॉमी की क्या ग्रोथ है। तो इस तरह नहीं होता, सच्चाई को सच बोलना चाहिए, सच बोलने से ही हम अपनी बेहतरी ला सकेंगे। मैसेज ये है कि जाहिर है जो कराची की हालात हैं जो आप देख रही हैं, इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक मेगा प्लान चाहिए होगा। ये कोई छोटा केस नहीं है जो बड़े आराम से हो जाएगा खाली किसी एक आदमी के उठने से या थोड़े पैसे देने से। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में हमारे तीनों गेस्ट आए। और मैं अपने देखने वालों से भी यही कहूँगी कि जो है जो मसाइल या जो भी हमारी लाइफ में हमारे मुल्क में अचानक कोई चीज़ अगर हम पे मुसल्लत की जाती है जिसकी हमें तैयारी नहीं होती, तो खुदारा पहले हमें तैयार कर लें उन चीज़ों के लिए कि हमें उन चीज़ों को फेस करना है। एकदम अचानक से आप ये ना कहते कि ये चीज़ अब आपने करनी है, हम तैयार नहीं हैं उन चीज़ों के लिए, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। आपको पता है इस टाइम पे जबकि दुनिया भर की जो है कोरोना कोविड-19 की वजह से दुनिया भर की मईशत को बहुत जो है नुकसान पहुँचा, पाकिस्तान भी, तो इस टाइम पे अगर इतना बड़ा एक आप चीज़ सामने लेके आओगे तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी। तो खैर आज का शो आपने देखा, यकीनन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह आप हमारा शो देखते रहे। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।